Lucifer like insect. बोलो Anaphylaxis malaria, Culex filariasis, Culex Japanese encephalitis, Aedes chikungunya, Aedes yellow fever, Aedes dengue, phylum Molluscum. Pilla, apple snail, Pinctada, perloster, Sepia, cuttlefish, Loligo, squid, octopus, devilfish, Aplysia, sea, Dentalium, tusk shell, Chitoplura, chiton. Phylum Echinodermata, Asterius, starfish, Echinus, sea urchin, Antedon, sea lily, Cucumaria, sea cucumber, Ophiura, brittle star. Phylum Hemichordata, Ballonoglossus, Cephaloglossus. Phylum Chordata. Subphylum Urochordata, Ascidia, Sulfa, Doliolum, subphylum Cephalochordata, Branchiostoma, Amphioxus, lancelet. Class Cyclostomata, Petromyzan, lamprey, myxine, hangfish. Class Chondrichthyes, Scoliodon, dogfish, Prestes, sawfish, Carcharodon, great white shark, Trigon, stingray. Class Ostichthyes, marine fishes, Exochetus, flying fish, Hippocampus, seahorse, freshwater fishes, Lobio, rohu, Catella, Clarias, mugger, aquarium fishes, Betta, fighting fish, Pterophyllum, angelfish. Class Amphibian, Buffo, toad, Rana, frog, Hyla, tree frog, Salamander, Ichthyopus, limbless amphibian. Class Reptilia, Chilon, turtle, Testudo, tortoise, Camelon, tree lizard, Calotus, garden lizard, Crocodilus, crocodile, alligator, Hemidactylus, wall lizard, poisonous snake, Naja, cobra, Bangarus, rat, Viperia, viper. Class Aves, Corvus, crow, Columba, pigeon, Psittacula, parrot, Strutio, ostrich, Pao, peacock, Aptenoides, penguin, Nephron, vulture. Class Mammalia, oviparous mammals, Ornithorhynchus platypus, viviparous mammals, Macropus, kangaroo, Pteropus, flying fish, Camelus, camel, Macaca, monkey, Rattus, rat, Canis, dog, Felis, cat, Elephas, elephant, Equus, horse, Delphinus, common dolphin, Balænoptera, blue whale, Equus, horse, Delphinus, common dolphin, Balænoptera, blue whale, Panthera tigris, tiger, Panthera leo, lion. Thank you so much. थैंक यू बेटा, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू। मनीषा पडोल, थैंक यू बेटा। चलो बहुत बढ़िया, आपने एक अलग अंदाज से मनीषा ने एग्जाम्पल रिवाइज कर दिया, थैंक यू सो मच। सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कल हमने देखा ओके वेद उदय चला, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फाइलम एस्केलमेंथस के बारे में। We are dealing with topic AK एनिमल किंगडम, और उसमें फाइलम एस्केलमेंथस दैट इज नेमैटहेलमिन्थस। काल 2 पॉइंट बोलायचे राहिले, दैट इज डेव्हलपमेंट, दैट इज बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट इज प्रेझेंट अँड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल, हे एक ऍड करा तिथं। दैट इज एस्केलमेंथसच्या पुढे लिहितो मी, एस्केलमेंथस दैट इज रिप्रोडक्शन, ये पॉइंट बाकी था, रिप्रोडक्शन इन एस्केलमेंथस। वो कैसा दोस्तों, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें भी सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वो टी में ये ऐड करो इसमें, दैट इज टिनोफोरा, इकॉर्डाटा, एनलिडा एंड एस्केलमेंथस, A2 करा, ओनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। डेव्हलपमेंट काय असतं, डेव्हलपमेंट जो है, डेव्हलपमेंट बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट इज प्रेझेंट। काही लोकांमध्ये डायरेक्ट आहे, काही लोकांमध्ये इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट आहे, बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेव्हलपमेंट इज प्रेझेंट।
सो डेवलपमेंट दोस्तों दोनों टाइप की डेवलपमेंट है, बोथ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट डेवलपमेंट, बोथ इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट मीन्स कुछ एनिमल में डायरेक्ट होंगे तो कुछ एनिमल में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट असतील, काही मध्ये डायरेक्ट आणि काही मध्ये इनडायरेक्ट डेवलपमेंट असते. दिस इज अबाउट अस्के हेलमिंथस. नाउ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट मैं अभी लिखने जा रहा हूं अबाउट दोस्तों हेलमिंथ, अबाउट हेलमिंथ. नाउ हेलमिंथ क्या होते हैं? नाउ व्हाट इज मीन बाय हेलमिंथ? हेलमिंथ्स दोस्तों, ये जो हेलमिंथ है इसके दो टाइप होते हैं, लक्षात ठेवा. बेसिक दोन टाइप आहेत हेलमिंथचे, that is platyhelminthes and askehelminthes. Helminth means, the meaning of term helminth means दोस्तों worm, and there are some disease causing helminth. एक है platyhelminthes, helminth, और दूसरे तो दोस्तों that is askehelminthes. Now these askehelminthes, they are also called as a nemathelminthes. इनका दूसरा नाम क्या है? nemathelminthes. ये दो हेलमिंथस हमेशा कंफ्यूज करेंगे, आपको पता होना चाहिए. नाउ प्लैटीहेलमिंथस में कौन से ग्रुप आते हैं? तो प्लैटीहेलमिंथस में ग्रुप आते हैं दोस्तों, तीन इंपॉर्टेंट ग्रुप है. दीज आर, लक्षात ठेवा याच्यामध्ये तीन इंपॉर्टंट ग्रुप आहेत. एक आहे दॅट इज अ, कारण की नेहमी कन्फ्यूज होतं ट्रिमॅटोड म्हणजे काय, सिस्टोड म्हणजे काय, आणि प्रॉब्लेम येतात मुलांना. लक्षात ठेवा. एक आहे दॅट इज अ टर्बेलॅरिया, पुन्हा असतो दॅट इज ट्रिमॅटोड्स, काय नाव? ट्रिमॅटोड्स. आणि पुन्हा आहे दॅट इज अ सिस्टोड. शायद आपने ये नाम सुने होंगे या नहीं पता नहीं, टर्बेलैरिया, ट्रिमैटोड्स एंड सिस्टोड. और एस्केहेलमिंथस में एक ही नाम आता है, दैट इज दोस्तों वो है दैट इज नेमाटोड्स. ये क्लास है नेमाटोड्स, लक्षात ठेवा. दीज आर द फाइलम. हे काय आहेत? दीज आर फाइलम प्लैटीहेलमिंथस and phylum Askehelminthus, and these are the class, that is Turbellaria, Trematodes, Cystod and Nematodes. Now please pay attention. याच्यामध्ये एक्झाम्पल ऑफ टर्बेलॅरिया, आता मी इथे लिहितो सगळ्यांचे एक्झाम्पल. नाउ एग्जाम्पल ऑफ टर्बेलॅरिया दोस्तों वो होता है प्लैनेरिया. का एग्जाम्पल है? प्लैनेरिया. और प्लैनेरिया इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ, दैट इज अ डिगोसिया. प्लॅनेरियाचं दुसरं नाव काय? डिगोसिया. प्लॅनेरियाला दुसरं नाव असतं डिगोसिया. नाउ एग्जाम्पल ऑफ ट्रिमॅटोड्स, एमसीक्यू, फॅसिओला हेपॅटिका. काय नाव आहे पूर्ण ह्याचं? फॅसिओला हेपॅटिका. फैसिओला इज अ जीनस, हेपैटिका इज अ स्पीसीज. फैसिओला हेपैटिका, और इसे कहते हैं दोस्तों लिवर फ्लुक्स. लक्षात ठेवा, लिवर फ्लुक्स, फैसिओला हेपॅटिका. ह्याचं कॉमन नाव आहे लिवर फ्लुक्स. आणि सिस्टोड मध्ये येतं दॅट इज अ टिनिया. सिस्टोड मध्ये काय? टिनिया सोलियम आणि टिनिया सजायनाटा, हे सिस्टोडचे पार्ट आहे, लक्षात. टिनिया. नाउ ये जो टिनिया है, टिनिया को बोला जाता है टेपवर्म. टिनिया टेपवर्म, याद रखो, टिनिया टेपवर्म. नाउ ये है दोस्तों दैट इज अ 3 ग्रुप्स, 3 क्लासेस इन प्लैटीहेलमिंथस, टर्बेलैरिया, ट्रिमैटोड्स और सिस्टोड्स. ट्रिमैटोड्स फैसिओला हेपैटिका, सिस्टोड टिनिया, हे अतिशय महत्वाचे, बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे जाके ये क्वेश्चन आना है ना, फैसिओला हेपैटिका क्या है. तो अगर इसके डिटेल में एग्जांपल देखे जाए तो 2 टाइप के टिनिया है. एक है टिनिया सोलियम और दूसरे होते दोस्तों दैट इज अ टिनिया सजायनेटा. टिनिया सोलियम, टिनिया सजायनेटा. अब ये जो टिनिया सोलियम है इसको कहा जाता है पॉर्क म्हणजे पिग, डुक्कर. पॉर्क टेपवर्म आहे. काय आहे? पॉर्क टेपवर्म म्हणजे टिनिया सजायनेटा. और एक दूसरा वर्म है दोस्तों, उसे कहते हैं दैट इज बीफ म्हणजे गाय. ओके, बीफ टेपवर्म, दैट इज टिनिया सजायनेटा. लक्षात ठेवा, बीफ टेपवर्म म्हणजे टिनिया सजायनेटा, पॉर्क टेपवर्म म्हणजे टिनिया सोलियम.
नाउ ये दोस्तों निमैटोड्स, नाउ निमैटोड्स में तो बहुत सारे लोग हैं। ये जो क्लास निमैटोड्स है, क्लास निमैटोड्स, निमॅटोड्स आणि निमॅटोड्स मध्ये खूप लोक जास्त आहेत, लक्षात ठेवा। त्याच्यामध्ये नंबर 1 त्याच्यामध्ये एक आहे, दॅट इज सिनोरॅब्डायटिस एलिगन्स, सिनोरॅब्डायटिस एलिगन्स, सिनोरॅब्डायटिस एलिगन्स, सिनोरॅब्डायटिस एलिगन्स। हे फ्री लिव्हिंग आहे। हा काय आहे? हा फ्री लिव्हिंग नॉन पॅथोजेनिक नेमॅटोड है। सिनोरॅब्डायटिस एलिगन हा काय? फ्री लिविंग है, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमैटोड है, एमसीक्यू। फिर दोस्तों दूसरे जो है, दूसरे उनमें आएंगे, नंबर 2 पे आता है, दैट इज एस्केरिया, एस्केरिया लंब्रिकॉइड्स, एस्केरिया लंब्रिकॉइड्स। नाव फक्त लक्षात ठेवा, एस्केरिया लंब्रिकॉइड्स। फिर उसके बाद आएगा दोस्तों दैट इज उचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी और उचेरेरिया मलाई, उचेरेरिया बैनक्रॉफ्टी, बैनक्रॉफ्टी या फिर उचेरेरिया मलाई दूसरा है। तीसरा आएगा दोस्तों दैट इज अनकाइलो, अनकाइलो, अनकाइलोस्टोमा, अनकाइलोस्टोमा डिओडेनल, डिओडेनल, ओके, अनकाइलोस्टोमा डिओडेनल म्हणजेच हुकवर्म। एस्केरिया राउंडवर्म, उचेरिया बैनक्रॉफ्टी फिलारियम, अनकाइलोस्टोमा डिओडेनल, हुकवर्म, हे त्यांचे नाव आहेत, माहिती असणं गरजेचं आहे। सो ये क्लासिफिकेशन आपको आना चाहिए हेलमिंथ का। ये है क्लासिफिकेशन ऑफ हेलमिंथ। हेलमिंथ म्हणजे वर्म, एस्के हेलमिंथस म्हणजे दोस्तों, एस्के हेलमिंथस को पैर से बोला जाता है राउंड वर्म, इन्हें पैर से बोला जाता है राउंड वर्म, और प्लैटीहेलमिंथस को कहा जाता है फ्लैट वर्म, इन्हें क्या बोला जाता है? फ्लैट वर्म। ये क्लासिफिकेशन वॉल ऑफ बायोलॉजी और लाउंड है। ओके, क्वेश्चन आएगा कि फैसियोला हेपेटिका इनमें से कौन से क्लास से बिलोंग करता है? टर्बेलेरिया, ट्रेमाटोड, सिस्टोड और नेमाटोड्स। योर आंसर शुड बी ट्रेमाटोड्स। क्वेश्चन आएगा टीनिया कहां से बिलोंग करता है? सिस्टोड, ट्रेमाटोड्स, नेमाटोड्स और टर्बेलेरिया। आंसर इज सिस्टोड। और ये बाकी के जो है एस्केरिया, उचेरिया, अनकाइलोस्टोमा, इनका क्लास कौन सा है? नेमाटोड्स। इनका क्लास कौन सा है? नेमाटोड। ये आगे चल के सिलेबस में है कहीं ना कहीं, तो भी याद रखो। ओके, नाउ प्लीज पेटेशन। पुढचं ज्याची त्याची गरज नाही। फर्टिलायझेशन इंटरनल आहे, एस्के हेलमिंथस मधलं फर्टिलायझेशन राहिला, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। लिखो, एस्के हेलमिंथस में फर्टिलाइजेशन अगर है दोस्तों, तो एस्के हेलमिंथस में जो फर्टिलाइजेशन होगा दैट इज फर्टिलाइजेशन एस्के हेलमिंथस का। कैसा होगा फर्टिलाइजेशन? इट विल बी दोस्तों इंटरनल। फर्टिलाइजेशन कसं असतं? इंटरनल, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। और ये सभी जो है दोस्तों, फॉर एग्जांपल फैसियोला हेपेटिका, टीनिया, एस्केरिस, उचेरिया, अनकाइलोस्टोमा, दे कॉजेस डिसीज इन ह्यूमन बीइंग। ओके, एस्केरिया कॉजेस एस्केरियासिस और उचेरिया कॉजेस इनकेफेलाइटिस और दैट इज फिलारियासिस, हत्ती रोग, पाय एवढा हत्तीसारखा होतो त्याच्यामध्ये। ओके, डन, क्लियर है, क्लियर है। सो दिस इज अबाउट दोस्तों हेलमिंथ और उसका क्लासिफिकेशन। दिस इज अबाउट द हेलमिंथ और उसका क्लासिफिकेशन। आगे बढ़ते हैं, दैट इज, और बात करते हैं दोस्तों फाइलम, फाइलम एनेलिडा। एग्जांपल तो सांगितलं, फाइलम एनेलिडा, फाइलम एनेलिडा। नाउ फाइलम एनेलिडा में व्हाई दे आर कॉल्ड एज, व्हाई नेम्ड सो? नेम्ड सो बिकॉज फाइलम एनेलिडा नेम्ड सो as their body have little rings, body are made up of, as their body is made up of, as their body is made up of दोस्तों little ring, their body is made up of, body contain little ring, annulus म्हणजे little ring, वहां से शब्द आया है, annulus म्हणजे little rings, annelida named so। नाउ ये जो एनेलिडा है दोस्तों, फॉर एग्जांपल नंबर 1 पॉइंट और नंबर 2 दैट इज हैबिटेट। व्हाट इज द नेचुरल लिविंग होम ऑफ दीज एनेलिड्स? तो हैबिटेट दो है दोस्तों, एक्वेटिक एज वेल एज
टेरेस्ट्रियल, दोनों एक्वेटिक हैबिटेट है। एक्वेटिक मीन्स पानी में भी पाए जाएंगे और टेरेस्ट्रियल और द लैंड ऑल्सो, जैसे अर्थवर्म है टेरेस्ट्रियल। नाउ एक्वेटिक में भी फिर से दो हैबिटेट है, दैट इज मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर, मरीन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर, मरीन वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर। याद रखो मरीन वाटर का एग्जांपल है दोस्तों, दैट इज नेरिस डायोसियस। नेरिस जो है, नेरिस डायोसियस मरीन वाटर का एग्जांपल है, नेरिस डायोसियस। नाउ फिर इसमें मॉइस्ट सॉइल, ओके, टेरेस्ट्रियल में कैसा है, मॉइस्ट सॉइल, और मॉइस्ट सॉइल में पाए जाएंगे दैट इज दोस्तों अर्थवर्म। मॉइस्ट सॉइल के ऊपर क्या पाए जाते हैं, अर्थवर्म, ओके, फेरेटिमा अर्थवर्म, फेरेटिमा अर्थवर्म, फेरेटिमा अर्थवर्म। नाउ ये हो गया इसका हैबिटेट। पॉइंट नंबर 2 दैट इज अबाउट द हैबिट, इसका नेचर क्या है, आर दे पैरासाइट और फ्री लिविंग। तो दोस्तों ये जो हैबिट है उनका, हैबिट नेचर का असनर है, नेचर दोनों है, दैट इज दे आर, दो नेचर है उनके, फ्री लिविंग भी है, फ्री लिविंग एज वेल एज पैरासाइट। और पैरासाइट भी कैसे है, एक्टो पैरासाइट है, कैसे, एक्टो पैरासाइट है, एक्टो पैरासाइट, एक्टो पैरासाइट। और एक्टो पैरासाइट में दोस्तों याद रखो यहाँ पे फ्री लिविंग मध्ये येतील, त्याच्यामध्ये फ्री लिविंग मध्ये येतील अर्थवर्म इज अ फ्री लिविंग, अर्थवर्म, नेरिस हे फ्री लिविंग है, अर्थवर्म नेरिस फ्री लिविंग है। और एक्टो पैरासाइट का एग्जांपल है दोस्तों हीरुडिनारिया, हीरुडिनारिया जो ब्लड सकिंग लीच है, इट इज एक्टो पैरासाइट ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल, ठीक है, ब्लड सकिंग लीच है, दैट इज एक्टो पैरासाइट ऑन बॉडी ऑफ एनिमल। बहुत बढ़िया सौरभ, बहुत ही अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, खूप खूप छान, ओके। नाव हे झालं हॅबिट। आता पुढचा मुद्दा, दॅट इज, आता तुम्ही सांगायचं व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, LOO, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है बच्चों, बोलो, व्हाट इज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज ऑर्गन सिस्टम। नाउ पुन्हा तुम्ही टाइप करायला सुरुवात करते, सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज प्रेजेंट इन पोरीफेरा, tissue level of organization is present in Coelenterata and Ctenophora, organ level of organization is present in Platyhelminthes, और organ system level of organization is present in Aschelminthes onward, और ये तो Aschelminthes के आगे है। So level of organization दोस्तों that is organ system level of organization, organ system level of organization, organ system level of organization। Point number 2 that is फिर body symmetry, पॉइंट नंबर दुसरा कोणता आहे, बॉडी सिमेट्री। आणि या बॉडी सिमेट्री मध्ये लक्षात ठेवा, बॉडी सिमेट्री मध्ये दैट इज ऑर्गन सिस्टम लेवल मध्ये, आणि बॉडी सिमेट्री मध्ये लक्षात ठेवा, बॉडी सिमेट्री में क्या है दोस्तों, इसमें आएगा उसका निमोनिक्स होता है मोस्ट ऑफ द स्पंजेस आर एसिमेट्रिकल, मोस्ट ऑफ द स्पंजेस आर एसिमेट्रिकल एंड सम स्टूडेंट आर रेडी फॉर सीईटी, म्हणजे सम स्पंजेस, आणि रेडी म्हणजे रेडीली सिमेट्रिकल, सीईटी मीन्स सिलेंट्रेटा, इकानोडर्मेटा अडल्ट एंड टिनोफोरा रेडियली सिमेट्रिकल, बाकी के बचे हुए बायलैटरल सिमेट्री। तो इनमें सिमेट्री कैसी होगी दोस्तों, सिमेट्री इज अ बायलैटरल। नाउ व्हाट इज मीन बाय बायलैटरल सिमेट्री, बायलैटरल सिमेट्री मींस देयर बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल राइट एंड लेफ्ट हाफ व्हेन अ सिंगल प्लेन, ओनली वन प्लेन passes through their center। याच्यानंतर दैट इज नंबर ऑफ जर्म लेयर, नंबर ऑफ जर्म लेयर, नंबर ऑफ जर्म लेयर कितने हैं, नंबर ऑफ जर्म लेयर, नंबर ऑफ जर्म लेयर कितने हैं, दैट इज दोस्तों, सो क्या निमोनिक्स है, पीसीसी आर डिप्लोब्लास्टिक, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, डिप्लोब्लास्टिक, बाकी के ट्रिप्लोब्लास्टिक है। सो नंबर ऑफ जर्म लेयर 3 होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक मींस दैट इज आउटर एक्टोडर्म, मिडल मेसोडर्म एंड इनर एंडोडर्म, 3 ही लेयर है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। फिर इसके बाद दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज सीलोम। तो सीलोम क्या है दोस्तों, सीलोम, तो सीलोम के लिए मेरे पास निम्नलिखित है, दैट इज एस्केहेलमिंथस इज इक्वल टू सूडोसिलोमेट, और अबो एस्केहेलमिंथस असिलोमेट, बिलो एस्केहेलमिंथस सिलोमेट। ये एस्केहेलमिंथस के
नीचे आते हैं तो ये सिलोमेट है. दीज आर द फर्स्ट एलिमेंट विच आर ट्रू सिलोम. लक्षात ठेवा सिलोमेट है, ये है सिलोमेट, याद रखो सिलोमेट. और उन्हें कहा जाता है यूसिलोमेट. क्या शब्द यूज किया मैंने? सिलोमेट, या फिर शब्द यूज किया जाएगा यूसिलोमेट. मतलब है दैट इज फर्स्ट एनिमल विथ ट्रू सिलम, फर्स्ट फाइलम. ओके, फर्स्ट फाइलम विथ ट्रू सिलोम, जिसमें ट्रू सिलोम है, दैट इज एनेलिडा. दैट इज एनेलिडा. नाउ फिर बाद में आएगा दोस्तों दैट इज सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म. सेगमेंटेशन और मेटामेरिज्म. तो मेरे पास निमोनिक्स है सेगमेंटेशन का. क्या निमोनिक्स है बोलो? और निमोनिक्स रोज रिवाइज करेंगे. क्या निमोनिक्स है? दैट इज AAC, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा आर सेगमेंटेड. मींस ये एनेलिडा है तो दोस्तों ये सेगमेंटेड एनिमल है. दीज आर सेगमेंटेड एनिमल असतात, सेगमेंटेड एनिमल. और दोस्तों दीज आर द फर्स्ट एनिमल विच शो मेटामेरिज्म. MCQ सेगमेंटेशन म्हणजे मेटामेरिज्म. फर्स्ट फाइलम, okay, which shows first phylum which shows metamerism or segmentation, which shows metamerism or segmentation. This is a very easiest way to learn the kingdom Animalia. फिर दोस्तों बाद में इसके बाद में कौन सा आएगा? दैट इज फिर आएगा नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड होता है, यस नोटोकॉर्ड होगा या नहीं बोलो? प्रेजेंट और अब्सेंट? कैपिटल में लिखता हूं नोटोकॉर्ड इज अब्सेंट, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अ नॉन कॉर्डेड. नाउ they are called as non-chordate. Now हमेशा आप एक शब्द सुनोगे लोअर इन्वर्टिब्रेट, लोअर इन्वर्टिब्रेट और हायर इन्वर्टिब्रेट. तो कि कौन सा वो कैरेक्टरिस्टिक है? दैट इज वन कैरेक्टरिस्टिक व्हिच डिवाइड दैट इन्वर्टिब्रेट इनटू लोअर एंड हायर, एंड दैट इज प्रेजेंस ऑफ सिलोम, ट्रू सिलोम. जिनमें ट्रू सिलोम है वो हायर इन्वर्टिब्रेट है, और जिनमें ट्रू सिलोम नहीं है वो लोअर इन्वर्टिब्रेट है. लिखो कहीं तो भी. जिनमें ट्रू सिलोम है वो हायर इन्व्हर्टिब्रेट, और जिनमें म्हणजे जे इन्व्हर्टिब्रेट आहेत त्याच्यामध्ये, आणि ज्यांच्यामध्ये नाही ते लोअर इन्व्हर्टिब्रेट. हे झालं नोटोकॉर्ड. ओके, इनवर्टिब्रेट जिनमें वर्टिबल कॉलम ही नहीं है उन्हें कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स. इनके दो ग्रुप होते हैं, हायर और लोअर. दैट इज लोअर इन्वर्टिब्रेट और हायर इन्वर्टिब्रेट. समझे आप? तो लोअर इन्वर्टिब्रेट मतलब दोस्तों नो ट्रू सिलोम, जिनमें ट्रू सिलोम नहीं है ऐसे. और दे हैव हायर इन्वर्टिब्रेट, दे हैव दोस्तों हैव ट्रू सिलोम. इनमें क्या है? ट्रू सिलोम है. यांच्यामध्ये काय? ट्रू सिलोम आहे. लोअर इन्वर्टिब्रेट और हायर इन्वर्टिब्रेट. समजते? इन्वर्टिब्रेट कळते? क्लियर आहे? डन. हे माहित असू द्या कुठतरी. हे बाजूला लिहा तुम्ही इथं. लोअर इन्वर्टिब्रेट और हायर इनवर्टेब्रेट्स, दोनों में ये फर्क है. वर्टिब्रेट मींस व्हाट इज मीन बाय इनवर्टिब्रेट? द एनिमल इन विच वर्टिबल कॉलम इज अब्सेंट. इनवर्टिब्रेट म्हणजे काय? एनिमल विथ नो वर्टिबल कॉलम, एनिमल विदाउट वर्टिबल कॉलम, एनिमल विदाउट वर्टिबल कॉलम. ज्यांच्याकडे वर्टिबल कॉलम नहीं है, वर्टेब्रल कॉलम नहीं है, उन्हें कहते हैं इनवर्टिब्रेट. ओके, तो याद रखो दोस्तों, ये थोड़ा सा अलग से याद रखो, इसे थोड़ा सा अलग से याद रखो. ठीक है, समझे आप? समझे? ये बेसिक चीज है अबाउट द फाइलम एनेलिडा. अबाउट द फाइलम एनेलिडा. नर कॉर्ड असणार आहे डीव्हीएस टाइप. कसा? डीव्हीएस, डबल व्हेंट्रल अँड सॉलिड नर कॉर्ड असणार आहे. कसा? डबल व्हेंट्रल अँड सॉलिड नर कॉर्ड, डीव्हीएस टाइपचा. लक्षात ठेवा. झालंय, पुढे जातो. फाइलम. दैट इज, फिर से दोस्तों बात करें एनिलिडा की, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम. कशी असते डाइजेस्टिव सिस्टम इन एनिलिडा दोस्तों? इट इज कंप्लीट. कशी आहे डाइजेस्टिव सिस्टम? इट इज कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है.
कम्प्लीट डायजेस्टिव्ह सिस्टम हे लक्षात ठेवा. नाव पुन्हा येतो मुद्दा, दॅट इज अ सर्क्युलेटरी सिस्टम. सर्क्युलेटरी सिस्टम एनिलिडा मध्ये अतिशय महत्वाचं आहे. इन एनिलिडा क्लोज टाइप ऑफ सर्क्युलेटरी सिस्टम है. एमसीक्यू, क्लोज्ड सर्क्युलेटरी सिस्टम, closed circulatory system, MCQ. Okay, and these are the animal in which first time circulatory system is developed in, okay, Annelida. Circulatory system first time circulatory system present in Annelida. ये भी MCQ. First time circulatory system is present in Annelida. Now circulatory system में दोस्तों closed type of circulatory system है. और एक बात है, RBCs are absent. RBC नहीं होते हैं, RBCs are absent. MCQ. हीमोग्लोबिन लेकिन होता है, और ये जो हीमोग्लोबिन है ये आगे चल के अर्थवर्म नाम का एक एनिमल है हमारे सिलेबस में. अर्थवर्म ये इसी का एग्जांपल है. हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व इन प्लाज्मा. MCQ. हीमोग्लोबिन इज डिसॉल्व इन प्लाज्मा. RBC मध्ये नसतो, ते प्लाज्मा मध्ये डिसॉल्व आहे. दॅट्स वाय इसका जो प्लाज्मा है दोस्तों ब्रेड, इसका जो ब्लड है रेड कलर्ड ब्लड असते. याचा जे ब्लड आहे ते रेड कलर्ड ब्लड आहे. लक्षात ठेवा, ह्याचं जे ब्लड आहे ते रेड कलर, ड्यू टू ब्लड इज रेड कलर्ड. ब्लड इज रेड कलर्ड. क्यों कलर्ड? ड्यू टू दैट इज डिसॉल्व हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा. ड्यू टू डिसॉल्व्ड HB हीमोग्लोबिन इन प्लाज्मा, इसलिए ये रेड कलर का ब्लड होता है. दैट इज एनिलिडाचा. ठीक है, एनिलिडाचा. ठीक है, बर. यस तुम्ही अगोदर ह्याच्या फोकस करा. तुम्हाला ना एवढं सोपं झालं नाही, तुम्ही दुसऱ्या गोष्टीचा विचार करायला, तुम्हाला अवघडच शिकवायला पाहिजे. लक्षात ठेवा, माहिती आहे सॅंग्विहोरस लीच आहे ते. एक्टोपॅरासिट सांगितलं ना, ते येतो मी डायजेस्टिव्ह सिस्टम वर. थांबा ना तुम्ही. नाउ ये होगा इसका सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ प्लीज पे अटेंशन, इसका होगा ये सर्कुलेटरी सिस्टम. नाउ दोस्तों डायजेस्टिव्ह सिस्टम कंप्लीट आहे, आणि तिथे एक पॉइंट लेतो की लक्षात ठेवा, जे लीच असतात, लीच जे असतात, लीच त्याला एक शब्द वापरलेला आहे सॅंग्विहोरस. काय शब्द वापरला? लीचला एक शब्द वापरला, दॅट इज सॅंग्विहोरस. काय शब्द वापरला? दॅट इज सॅंग्विहोरस. याचा अर्थ काय असतो? सॅंग्विहोरस म्हणजे सॅंग्विहोरस, सॉरी, सैंग्विहोरस म्हणजे ओके ब्लड सकिंग कहते हैं. ब्लड सकिंग. ओके, ब्लड सकिंग एनिमल जो होते हैं उन्हें सैंग्विहोरस कहते हैं. ब्लड सकिंग एनिमल जो है उन्हें कहते हैं सैंग्विहोरस. याद रखो, लीच है. नाउ इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नॉट वेल डेवलप्ड एज कंपेयर टू आर्थ्रोपोडा. पर रेस्पिरेशन और रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या है दोस्तों? रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन आइदर बाय, ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम दो चीजें है दोस्तों यहाँ पे. रेस्पिरेशन इज वाया मॉइस्ट क्यूटिकल. रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन, rather than using the respiratory system term, I use the term respiration. जो होगा exchange of gases. respiration is via दोस्तों, it is via दो चीजों के तरह से होगा. it is via moist cuticle in earthworm. MCQ. via moist cuticle. earthworm मध्ये ना moist cuticle असतात. क्युटिकल म्हणजे कवरिंग आहे बॉडीची. एक्झाम्पल दॅट इज इन अर्थवर्म. MCQ. आठवतं का? ब्रीदिंग अँड एक्सचेंज ऑफ गॅसेस. ओके, रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म इज वाया मॉइस्ट क्यूटिकल. याद आ रहा है या नहीं? यस और नो? नाउ ठीक है, नाउ प्लीज पे अटेंशन. ओके, और दोस्तों जो रेस्पिरेशन है वाया अर्थवर्म और रेस्पिरेशन वाया गिल्स, गिल्स लक्षात ठेवा, त्याला म्हणायचं असतं ब्रँकियल रेस्पिरेशन. दैट इज प्रेजेंट इन नेरिस. क्योंकि नेरिस कैसा है? नेरिस एक्वेटिक है, मरीन है. दैट इज गिल्स. ये हो गया उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेशन. मॉइस्ट क्यूटिकल अर्थवर्म मध्ये आणि गिल्स, हे लक्षात ठेवा. डायजेस्टिव्ह सिस्टम, सर्क्युलेटरी सिस्टम. आता एक्सक्रेटरी सिस्टम. नाउ प्लीज प्रेशन. एक्सक्रेटरी सिस्टम म्हणजे एक्सक्रेशन आणि ऑस्मोरेशन. जसं आपल्यामध्ये किडनी, तसं काय एक्सक्रेटरी सिस्टम दोस्तों, इट ऑकर थ्रू द नेफ्रेडिया.
काय असतात, नेफ्रेडिया आहेत, ह्याचे वेगवेगळे टाइप असतात, आपण त्यावेळेस बघूया. नेफ्रेडिया इट इज क्या दोस्तों, अ कॉइल्ड ट्यूब होता है which help in excretion and osmoregulation. Okay, what is nephridia? बर ठीक आहे, थांबूया आपण. हा एवढं झालं की थांबूया, चालतंय. ओके, नेफ्रिडिया काय लक्षात ठेवा, नेफ्रिडिया काय मुलांनो, दॅट इज इट इज कॉइल्ड ट्युब्युलर स्ट्रक्चर असतो, कॉइल्ड ट्युब्युलर स्ट्रक्चर which help in दोस्तों osmo regulation and excretion, osmo or excretion and osmo regulation, which help in excretion and osmo regulation, that is excretory system. आता नर्वस सिस्टम मध्ये काय असतं लक्षात ठेवा, ह्याचे जे नर्वस सिस्टम आहे, याच्यामध्ये असतं, दॅट इज इसका जो नर्व कॉर्ड आहे, एवढं बोलतो आणि थांबतो, नर्व कॉर्ड जो असतो, नर्व कॉर्ड हा कसा आहे, डीव्हीएस आहे, डबल वेंट्रल आणि सॉलिड आहे. डीव्हीएस म्हणजे काय, डबल वेंट्रल आणि सॉलिड आहे, डबल वेंट्रल आणि सॉलिड, ठीक आहे. आणि देयर इज अ प्रेझेन्स ऑफ गँग्लिया भी होते दोस्तों, ठीक आहे. नेफ्रिडियम सिंगुलर झालं, ठीक आहे, नेफ्रिडियम सिंगुलर झालं एकदम. there is a presence of गँग्लियन असते आणि एक नर्व रिंग असते. अँड प्रेझेन्स ऑफ नर्व रिंग काय असते नंतर सांगतो उद्याच्याला. प्रेझेन्स ऑफ गँग्लियन अँड गँग्लिया अँड प्रेझेन्स ऑफ नर्व रिंग, काय नर्व रिंग हे असू द्या, माहित असू द्या. रेस्पिरेशन, एक्सक्रेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ठीक आहे. कळालं? थांबूया आपण, तुमचं लेक्चर आहे. ओके बाय, ठीक आहे. पियर्ड गँग्लिया असतात, पियर्डच आहे गँग्लिया, प्रेझेन्स ऑफ पियर्ड गँग्लिया. उद्याच्या ह्याचं डिटेल मध्ये सांगतो कसं आहे. गँग्लियाचा पियर असतो, पियर्ड गँग्लिया दोन्ही साईडला असतात. पियर्ड गँग्लिया म्हणजे कलेक्शन ऑफ सायटॉन असतं. डबल व्हेंट्रल अँड सॉलिड नर्व कॉर्ड आहे, डबल व्हेंट्रल अँड सॉलिड आहे. आणि प्रेझेन्स ऑफ दोस्तों दॅट इज नर्व रिंग, प्रेझेन्स ऑफ नर्व रिंग. हे उद्याच्याला सगळं कसं असतं हे सगळं समजून सांगतो, ठीक आहे. नर्वस सिस्टीम पर्यंत आलेलो. आणखी पुढचं राहिले बॉडी वॉल अँड ऑल दॅट, ठीक आहे. थँक्यू. ब्ल्यू कलर असतो बेटा आयुष सोनी. हिमोग्लोबिन जर अपसेट असेल तर ब्ल्यू कलर, हिमोग्लोबिन अपसेंट असेल तर ब्ल्यू कलर, ठीक आहे. थँक्यू. अगोदर हे एक्सपोर्ट करतो. ओके, हा एकदम इझी टॉपिक आहे बघा. फक्त काय तुम्हाला ते वे कळायला पाहिजे कसं जायचंय, समजतंय? येतं लक्षात? बाकी आता तुम्हाला जास्त पाठांतराची गरज आहे का नाही? बेस आपलं फंडामेंटल आपण तयार केलं, पाठांतराची गरज आहे का? ओके, बर करतो बेटा, बेटा करतो लेक्चर अपलोड, ठीक आहे. बराच वेळ वेट केला का? ठीक आहे. गँग्लिओ आहे बेटा, गँग्लिओन आहे, गँग्लिओन. पुढच्या ऑगस्ट मध्ये आपण सुरू करूया, पहिल्या आठवड्यामध्ये बॅच नवीन ऑगस्ट मध्ये येऊन जाईल तुम्हाला.
हे बघा पाठवलं लगेच. क्लॉयका सांगा. आलं लक्षात उन्मेष बेटा सांगतो. क्लॉयका उद्या सांगतो. तुमचं लेक्चर सुरू झालंय, आज वेळ नाहीये. क्लॉयका उद्या सांगतो. एक चेंबर असतं जिथं डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट, युरिनरी ट्रॅक्ट आणि रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट ओपन होत असतात. त्या चेंबरला, कॉमन चेंबरला क्लॉयका म्हणतात. काही लोअर अॅनिमल मध्ये तसं आहे, जिथं तिन्ही ट्रॅक्ट, डायजेस्टिव्ह ट्रॅक्ट, रिप्रोडक्टिव्ह ट्रॅक्ट आणि युरिनरी ट्रॅक्ट ओपन होतात, त्या चेंबरला म्हणायचं ओके एके इज मोर इजियर दॅन पीके. बरं, एके बढिया चालू आहे तुमचा, एके बढिया चालू आहे, ठीक आहे. नाही असं काय कनेक्शन आहे, काहीच प्रॉब्लेम नाही. उन्मेष काय प्रॉब्लेम आहे, नाही नाही तसं बोलायची गरज नाहीये. करतो बेटा अपलोड. हा ठीक आहे, काही कनेक्शन नाही बेटा सिलोमेट आणि सर्क्युलेटरी सिस्टम मध्ये. त्या बॅच मध्ये पहिल्यापासून शिकवणार आहे का, नाही. काही टॉपिक शिकवले जाईल, काही तुम्हाला रेकॉर्डिंगच बघावं लागेल. गँग्लियॉन म्हणजे विधी उद्या सांगतो. न्यूरॉनचे 3 पार्ट असतात, सायटॉन, डेंड्रॉन आणि एक्झॉन. त्या सायटॉनचं कलेक्शन म्हणजे गँग्लिया, उद्याच्याला सांगतो, वेळ नाहीये. विधी उद्याच्याला हे अॅनलिडा घेऊन उद्याच्याला आपण एकच फायलम घेणार आहोत, दॅट इज आर्थ्रोपोडा. बरोबर, मोलुस्का इकोनॉडर्मेटा, नंतर हेमिकॉर्डेटा, ठीक आहे. आणि मग नंतर कॉर्डेटाकडे जाऊ. सोपा पण आहे, ठीक आहे, सोपा आहे एकदम जमायला लागलं तर, ठीक आहे. बीएफसीचं नाही टाकलं का, बीएफसीचं आलं नाही का? ठीक आहे, थांबतो मी, चला.